teeth and microbes. If you haven't seen the explanation of this chapter, links are given in the description box. Also, you can follow me on Facebook and Instagram. Links are given in the description box. And if you are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon for latest update. So now without further ado, let's start with today's class. So section A, choose the correct answer. In that, question number 1, the teeth used for biting are. There are 4 kinds of teeth. 4 kinds of teeth के बारे में हमने पढ़ा है. तो उन 4 kinds में से वो कौन सा kind है जो कि हमारे खाने को bite करने में हमारी help करता है. So the answer is option B, incisors. Next, the outermost layer of the teeth is the enamel. जो outermost layer होता है हमारे दांतों का, that is known as enamel. Okay. Next, question number 3, the sticky layer on the teeth is called. हमारे दांतों के ऊपर जो एक sticky layer form हो जाता है, that is known as plaque. So option B is the correct answer. Next, question number 4, the number of molars in each jaw. तो हमें यहाँ पे पूछा है कि each jaw में number of molars कितने होते हैं, not the total number of molars combining both. तो एक एक jaw में the number of molars present are 6. Option C is the correct answer. Question number 5, the part of teeth which contains nerves and blood vessel is. There are 3 main layers of teeth. हमने पढ़ा है कि टीथ के या फिर टूथ हैज़ 3 मेन लेयर. एक दांत के 3 लेयर्स होते हैं. तो कौन से लेयर में या फिर कौन से पार्ट में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं? दैट इज ऑप्शन सी, पल्प. ओके. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. इनमें से ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है? दैट इज मलेरिया. ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट माइक्रोब्स इज. तो हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट माइक्रोब्स के बारे में सच नहीं है, सही नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखा जाता है, इसीलिए उन्हें माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. सो दैट इज ऑब्वियसली अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस. कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए यूजफुल होता है. दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. Next statement given is virus are very useful to us. So we have read that fungi are useful, bacteria are useful, but we have not read that virus is also useful. तो virus useful नहीं होते. So option C is not true about microbes. Last वाला भी देख लेते हैं. Yeast helps to make cakes and bread spongy. तो मैंने explanation वीडियो में ये बताया था कि जो yeast होते हैं वो हमारे केक्स और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाते हैं, मीन्स उसके लिए वो यूजफुल होते हैं. सो हियर वी हैव गॉट अवर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. दैट इज वायरस आर नॉट यूजफुल टू अस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वायरस आर वेरी यूजफुल टू अस. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन, गिव शॉर्ट आंसर्स. In that, question number 1, how are teeth important to us? दांत हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? Answer, teeth are very important part of our body. They help us to bite and chew the food. तो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये टीथ, बिकॉज वो हमें हेल्प करता है खाने को बाइट करने में और चबाने में. ठीक है. Next, question number 2, name the 2 sets of teeth. So in our lifetime we have 2 sets of teeth, isn't it? So answer is we have 2 sets of teeth in our lifetime. पूरे lifetime में 2 set teeth हमारे में होते हैं. So these are, first one is temporary teeth, जिसको milk teeth भी कहा जाता है, दूध के दांत. And the next one is permanent teeth. ठीक है. Question number 3, what are the results of tooth decay?
टूथ डिके होने से क्या होता है? व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दैट? आंसर, द बाइट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स stuck in the teeth gap decay and cause germs to grow. This results in bad breath, bleeding gums, aching teeth and indigestion. तो एक्चुअली जो टूथ डिके होता है वो कैसे होता है? जब फूड पार्टिकल्स हमारे दांत के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसमें रह जाते हैं, उसकी वजह से वो डिके हो जाता है बाय द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. अब ये जर्म्स ग्रो होने से एंड टूथ डिके होने से क्या होता है? बैड स्मेल आती है हमारे माउथ से, देन ब्लीडिंग गम्स होते हैं, दांतों में दर्द होता है, देन इंडाइजेशन भी होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. नेम द स्टिकी लेयर विथ जर्म्स ऑन द टीथ. उस स्टिकी लेयर को क्या कहा जाता है जो कि जर्म्स की वजह से हमारे दांतों पे फॉर्म होता है? The germs form a sticky layer on the tooth called plaque that is very much harmful for our teeth. तो उसको कहा जाता है प्लेक, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. Question number 5. Name the hardest substance in our body. Very easy question, isn't it? Answer is enamel is the hardest substance in our body. Okay. Moving on to section C. Answer the following question. Question number 1. Name the different kinds of teeth and state their functions. So, answer is, we know that there are 4 types of teeth in a permanent set. First one is incisor. उसके function क्या है? They are used for biting the food. वो food को bite करने में हमारी help करता है. Next, canines. They are sharp teeth for tearing the food. वो food को टेयर करने में हमारी मदद करता है. नेक्स्ट टाइप इज प्रीमोलर्स, जो कि यूज्ड होते हैं फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड. इट शुड बी क्रशिंग. ओके, CR, द स्पेलिंग हियर इज मिस्टेकन. इट शुड बी CRUSHING. ओके, सो इट हेल्प्स टू क्रश एंड टू क्रैक द फूड पीसेस. नेक्स्ट इज मोलर्स क्या करते हैं? दे हेल्प टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड. वो हेल्प करते हैं हमारे फूड को ग्राइंड करने में और चबाने में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट 3 वेज इन विच बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस. सो हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियाज जो होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो हमें 3 वेज मेंशन करने हैं. सो सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल टू अस. सम बैक्टीरियाज क्या करते हैं? मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में. नेक्स्ट, कुछ फंगी भी होते हैं जैसे कि ईस्ट, जो कि हेल्प करते हैं टू बेक सॉफ्ट ब्रेड बनाने में. नेक्स्ट, कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं? दे हेल्प द सॉइल. दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दे हेल्प टू डिके द डेड plants and animals. Then next is some bacteria helps to digest roughage in animals. So these are the 3 ways. क्या क्या है? फर्स्ट वे इज जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. Now this is about the fungi. If you wish to write it, you can. Otherwise, you can skip about this. I have mentioned because this is also useful for us. ठीक है? So you may skip this part. You need not to write about fungi in this answer. Okay. Next way is some bacteria in the soil helps to decay the dead plant and animal. And then finally, some bacteria helps to digest roughage in animals. So these are the 3 ways in which bacteria are useful. You need not to mention about this fungi. You may only mention about how bacteria are useful for us. Clear? Next, question number 3, they have asked about different layers of teeth and support your answer with a diagram. So here is the diagram of these 3 important layers. You could only mention these 3 or else you can mention these also. That's your choice. Next is a tooth has 3 main layers. So mainly you have to mention these 3. First is enamel. It is the outermost layer of the teeth. It resists the wear and tear of the internal parts of the tooth. Next क्या होता है? डेंटिन होता है.
जो एनिमल के नीचे होता है, जो कि हमारे पल्प को प्रोटेक्ट करता है। एंड पल्प क्या होता है? जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स किसे कहते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स के नाम बताने हैं। सो माइक्रोब्स का डेफिनेशन लेट अस सी। आंसर इज माइक्रोब्स आर वेरी टाइनी living organisms that can be seen only through microscope. Disease causing microbes are called germs. तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, और जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हें कहा जाता है जर्म्स। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स क्या है? दोज आर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। क्लियर? Next, moving on to our last section, that is section D, asking you to write 2 diseases caused by each of the following. हमें इन सभी माइक्रोब्स की वजह से जो डिजीज होते हैं उनके दो नाम मेंशन करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट वन गिवन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होते हैं दैट आर टाइफॉइड एंड निमोनिया। देन फंगी, रिंगवॉर्म, देन एथलीट फूट। नेक्स्ट, वायरस की वजह से पोलियो एंड एड्स। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया एंड डिसेंट्री। ठीक है। सो दीज आर नेम ऑफ 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय ईच ऑफ दीज माइक्रोब्स। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. In our next video, we will come up with another chapter of class 4. Till then, stay tuned and thank you.